করার পর যেটা যখন মিডিয়া যখন এটাকে রিপোর্ট করছে তখন বলছে ইন্টারনাল ইনকোয়ারি করবে, তো আগে তো এটা জানার কথা রিজার্ভ ব্যাংকের, না? এটা তো স্যার রেকর্ড থাকে সবকিছু। হ্যাঁ, সরকার তো কখনো নিজের ব্যাপারে খারাপ কথা বলবে না। আরবিআই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথরিটি হতে পারে, কিন্তু আরবিআই অলওয়েজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফেভার হয়েই কাজ করে, যখন যে সরকার থাকে, যখন যে গভর্নমেন্ট থাকে। যখন রঘুরামজি রাজন ছিল, তখন রঘুরামজি রাজন কংগ্রেসের হয়ে কাজ করতো। এখন শক্তিকান্ত দাস আছেন, উনি বিজেপির হয়ে কাজ করেন। তো ভেরি সিম্পল না, এটা কিছু করার নেই। যখন যে গভর্নর থেকেছে কেউ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ করেছে বলে আমার মনে হয় না। এখনো পর্যন্ত সবাই গভর্নমেন্টের এক রকমের কি বলবো, সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু অনেক বড় অ্যামাউন্টে ঘাপলা হয়ে গেছে। ঘটনাটা খুব বড় অ্যামাউন্ট। সেটাই তো বলছি, মানে গভর্নমেন্ট কখনো তো মনে হয় গভর্নমেন্ট ভুল করে কখনো স্বীকার করেছে আজ পর্যন্ত? তাহলে তো আমাদের দেশ অনেক উন্নতি হয়ে যেত রে। মানুষ যদি নিজের ভুল স্বীকার করে নিত, এটা আমার ভুল হয়েছে, তাহলে আর দেখতে নেই। তাহলে আজকে দেশের উন্নতি আলাদাই লেভেল হয়ে যেত। মানে আজ 75 বছরে আমরা, চায়না আমাদের থেকে এত এগিয়ে গেছে কম্পারেটিভলি, সেখানে আমরা এতটা পিছিয়ে আছি। এটার মেইন কারণ আমরা আমাদের ভুলগুলো মানতে চাই না বলে। আজকে ভুল তো মানতে হবে, কিন্তু এটা ভুল। সবাই যে যা একটা ঢিঠ, ঢিঠ মানে বুঝি মানে আমি যেটা করেছি সেটাই ঠিক আর আমার ভুল হতে পারে না। তাহলে আমাদের দেশের রাজনীতিটা আমাদের মানুষের মেন্টালিটি থেকেই বিলং করে। আর মেন্টালিটিটাই এমন ঢিঠ প্রকৃতির হয়ে গেছে কি কখনোই, যতক্ষণ না ছেড়ছাড় হবে, যতক্ষণ না সেটা নিয়ে একটা রাজনৈতিক চর্চা হবে, তখন পর্যন্ত কোনো কিছু সাজেশন যেই পার্টি, আমি তো ভাই মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবেই এগুলো বিচার করি আমি। হ্যাঁ, আমার নিজস্ব কিছু পছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু ভুলটাকে ভুল বলবো না। এটা আমি কখনো এটাকে জবরদস্তি, না না ভুল হতে পারে না, এটা আমি একটা কমন সিটিজেন। যাই হোক, চলো, রাজনীতি এই খারাপ জিনিস। এই রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেছে, আমি শুধু এসব রাজনৈতিক কথা বলে যাচ্ছি। রেকর্ডিং স্টার্টেড না রে, আমার এখানে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা চলো। अच्छा सर, चल अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो टुडे स्टॉक मार्केट क्लास आज क्या होगा सर? आज एक्चुअली मैंने एक्स्ट्रा क्लास इसलिए दे दिया क्योंकि थर्सडे से थोड़ा सा क्लास ऑफ रहेगा अपकमिंग 4-5 डेज के लिए। 22 से लेके 27 तक क्लास थोड़ा ऑफ रहेगा, सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा क्लास दी। अच्छा, तो इक्विटी डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा ना। इक्विटी डेरिवेटिव में ऑप्शन ग्रीक के अंदर हम लोग ग्रीक को तो बीच में भूल ही गए सर, क्योंकि बीच में डेविएशंस और वोलेटिलिटी सीखते सीखते हम लोग ग्रीक के बारे में भूल गए कि ग्रीक भूल के भी कुछ चल रहा था। मुझे तो ऐसा याद आ गया सर। तो जो भी हो, अब ग्रीक के पास तो जाना पड़ेगा, ऑप्शंस ग्रीक के पास जाना पड़ेगा। बट ऑप्शंस ग्रीक के पास जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया सर। बाकी मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन जो मैंने फ्राइडे को कंप्लीट करवाया था, उसी का एक कंटिन्यूएशन बाकी है। बाकी ये चीज रह गया सर, स्टॉप लॉस रिगार्डिंग वोलेटिलिटी। माने मार्केट में कभी भी ऐसा मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सर। दैट इज एक फिक्स परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस, माने सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड। आप लोग बात समझते हो? सब्जेक्टिवली डिटरमाइंड माने इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोच लेता है कि भाई मुझे कितना स्टॉप लॉस लगाना, कि मैं 2% लॉस झेल सकता हूँ, कि मैं 3% लॉस झेल सकता हूँ। झेलना माने सहना, ठीक है? সহ্য করা, যেটাকে বাংলায় আমরা বলি। तो मैं 2% सह लूंगा, मैं 5% सह लूंगा, मैं 3% सह लूंगा। दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ स्टॉप लॉस डिटर्मिनेशन। ऑफ स्टॉप लॉस डिटर्मिनेशन, एक तो आप कैंडल स्टिक के बेसिस में चलो। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बहुत हेल्प करता है स्टॉप लॉस डिटर्मिनेशन में। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेनली टारगेट फिक्स करने में हेल्प करता है, और टारगेट एंड स्टॉप लॉस कनेक्टेड है कि नहीं है ना? बोलो सर, टारगेट के साथ स्टॉप लॉस का रिश्ता है कि नहीं है? ये सर नो, क्या रे? टारगेट के साथ स्टॉप लॉस का रिलेशन कौन मुझे समझा सकता है? पीयूष, पीयूष बुल भी, मैं विश्व बुल भी।
টার্গেটের সাথে স্টপ লসের কি সম্পর্ক? না, রিলেশন তো স্যার আছেই, কারণ আমরা তো আমাদের স্টপ লসের উপরও তো ভেরি করি যে 1:2 টার্গেট রাখবো কি 1:3 করবো। এবার বাকিটা ক্যান্ডেলস্টিকের উপর নির্ভর করছে। बेसिकली मेरा जो इच्छा था समझाने का वो ऐसा था कि सर अगर मेरा टारगेट, मुझे एक्चुअली आपको आपका टारगेट फुलफिल करना है ना? मैं जितना समझता हूँ मुझे अपना टारगेट हिट कराना है, इसीलिए हम लोग मार्केट में आते हैं। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो आप, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी ट्रेडिंग ऑप्शंस आपका है, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है टारगेट हिट करना। बट सर टारगेट हिट हमेशा नहीं होता है, तो चांसेस ये भी रहता है कि कभी कभी क्या मैंने ऐसा बहुत बार हो जाता है 30% 40% केस में कि हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाते। ऐसा होता है 20-30% तो हो ही जाता है बहुत केस में। कभी कभी अगर किस्मत खराब रहे तो 50-50 चांसेस भी होता है कि हम लोग टारगेट अचीव ही नहीं कर पाए, उल्टा लॉस हो गया। तो सिचुएशन ये बेसिकली मैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो स्टॉप मतलब बेसिकली लॉस होगा, ये सर नो। अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा तो मेरा लॉस होगा नॉर्मली। क्या कहते हो सर? चांसेस सही है ना? या तो टारगेट अचीव करेंगे या फिर लॉस हो जाएगा। तो लॉस मैक्सिमम करना चाहोगे कि मिनिमम करना चाहोगे? क्योंकि मेरा बात समझ में आ रहा है, आप लोग लॉस मैक्सिमम करना चाहोगे कि मिनिमम करना चाहोगे, इसी पे डिपेंड करता है ना स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। मिनिमम मिनिमम। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अगर आपको अपना टारगेट हिट कराना है, इफ यू रियली वांट टू हिट योर टारगेट, देन आपको अपना स्टॉप लॉस भी मेंशन इसलिए करना है बिकॉज आप मिनिमम लॉस के साथ जाना चाहते हो कि भाई अगर बाई चांस टारगेट हिट ना हुआ, अगर बाई चांस टारगेट हिट ना हुआ तो मैं मिनिमम लॉस अचीव करके, मिनिमम लॉस अचीव करना भी एक, ये भी एक सक्सेस है। ठीक है कि भाई मेरा लॉस मिनिमम रहा, ये भी दिस इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। नाउ पॉइंट इज दैट कि आप मिनिमम लॉस अचीव करने के चक्कर में आपको टारगेट शायद आपसे मिस हो जाए, बट कम से कम आप एक मिनिमम लॉस करके मार्केट से बाहर आ सकते हो ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। अब इसको करना इतना आसान नहीं होता है एंड दैट इज द रीजन लॉस कोई नहीं खाना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसको लॉस हो, बट लॉस मिनिमम हो ये भी देखना जरूरी है। और ये भी थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन होता है सर, ये भी कैलकुलेटिव लॉजिकल डिसीजन होते हैं कि आप मिनिमम लॉस के लिए मार्केट में आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको मार्केट के ऊपर डिपेंड करके ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मानो कि आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ही अगर मैं बात करूँ, जैसे अदानी, मुझे इसने अभी बता रहा था दादा अदानी का क्या है। अब ठीक है, मैं अदानी का एनालिसिस नहीं दूंगा, जो देना था मैं पहले दे चुका हूँ। अभी तो देखो आप ऑब्जर्व करोगे और फर्दर ट्रेंड के लिए वेट करोगे। ठीक है, अगर प्रॉपर कैंडल्स वगैरह आपको मिल जाए। करेंटली अदानी का सिचुएशंस क्या बता रहा है सर मार्केट? करंट अदानी कैसे सिचुएशंस में इसको क्या बोलेंगे? एकदम कंप्लीटली साइडवेज है ना सर, एकदम कंप्लीटली साइडवेज मार्केट जा रहा है। माने कोई पॉजिटिव मूवमेंट करेंटली है नहीं, बिकॉज जो ट्रेंड एक था ना सर, मतलब एक होता है ना कि जब भूकंप पॉजिटिव वे में आया था तो उस भूकंप का जो पॉजिटिवनेस है वो ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल के लिए अदानी ने अचीव कर लिया है, जो हम लोग यहाँ पर देख चुके थे सर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल बना था। हाँ सर, ये मैं ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ, आज हम लोग 19 जून में है और ये सिचुएशंस बना था रिसेंट ट्रेंड में। अगर आप देखो तो 18 मई के आसपास है ना, 18 मई के आसपास में एकदम प्रॉपर कैंडल बना था, जिसमें आप अपना टारगेट अगर रेडी कर रहे थे और कैंडल आपके साथ था, कि कौन सा कैंडल बना था मुझे प्लीज एक बार बताओगे? इनगल्फिंग है ना, आप लोगों का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। ठीक है सर, बहुत फेवरेट है मेरा ये। और ऐसे चीजों को तो छोड़ना नहीं चाहिए एकदम। मैंने एल्पेनलिबे लालच आ लपलपा, वो बचपन में एडवर्टाइजमेंट चलता था, जो लालच देता है, एकदम लालच देने वाला कैंडल था। और साथ में मार्केट न्यूज है ना, साथ में इसके साथ क्या था सर, मार्केट न्यूज भी था। अब मैं आप लोगों को बस यही बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने भी इस तरह इस सिचुएशंस में ट्रेड सेटअप लिया था,
तो आपने एक टारगेट भी फिक्स कर रहा था कि भाई अदानी कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए आप एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आप ड्रॉ कर सकते है ना। तो अगर आप नियर रेजिस्टेंस देखो, ठीक है, नियर रेजिस्टेंस तो अभी आसपास में, अभी नियर रेजिस्टेंस के ऊपर ही है अदानी, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं, मैं ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात अभी नहीं करूंगा सर, बिकॉज वो टेक्निकल चर्चा है, टेक्निकल पे करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस का जो कनेक्टिविटी करने का आपको इच्छा है वो इतना सिंपल है कि आपने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया तो आपने कितने में लिया ट्रेड, आप यहाँ ले लो सर। बेस्ट क्या है, आप जब तक कैंडल फॉर्म नहीं होगा तब तक तो आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में कुछ होने वाला है कि नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप श्योर ना हो जाते तब तक आप सेटअप ना लो सर। श्योर हो, पहले श्योर शॉट हो जाओ फिर ट्रेड सेटअप। चाहे अगर 2-4 दिन आपको चुपचाप खाली बैठना पड़े तो खाली बैठ, जबरदस्ती पैसा को कुछ कुछ मत कराओ ठीक है। ऐसा होता है ना, कुचलाता है किसी किसी को कि पैसा क्यों नहीं डाल रहा हूँ, कब पैसा क्यों नहीं डाल रहा हूँ, कब डालूंगा, ठीक है। ऐसा ना करो, आपके लिए बेस्ट है कि आप सही टाइम का वेट करो। तो जैसे आपने पहला दिन देखा कि भाई डाउन ट्रेंड में कैंडल डाउन जा रहा है, मैंने बेसिकली ट्रेंड डाउन हुआ है। डाउन ट्रेंड में आपको पहला कैंडल रेड था, फिर सेकेंड डे आपने देखा कि भाई एकदम इंगल्फिंग बन गया। अब आपका ट्रेड सेटअप आप यहाँ बनाओ, मैंने सेकेंड डे के क्लोज में मैंने पैटर्न 2 के क्लोजिंग पे, तो मोटा मोटी आपका, मैं जस्ट एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, 1950 आपका क्या बन रहा है सर, बाइंग एरिया बन रहा है। तो आप सेकेंड डे के क्लोज में, मैंने ये बेसिकली 19 मई आई थिंक, ठीक है, आज 19 जून है, 1 मंथ हो गया। 19 मई के क्लोजिंग में आपको ट्रेड सेटअप ले लेना चाहिए, है ना। स्विंग ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल एक स्विंग ट्रेडिंग ही ले रहा हूँ मैं। तो अगर आप 1950 में इसको बाय किया, अब अपना एक टारगेट फिक्स कर दो। मैं से फॉर एग्जांपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो या ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, आपने माना कि मुझे एक 1 मंथ का ट्रेड लेना है, आप एक 2400 का टारगेट सोच रहे हो, ठीक है, 2400 का एक टारगेट सोच रहे हो। अब 1950 में खड़े होके आप 2400 का टारगेट अदानी में हो सकता है, आपको पता है अदानी बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ ले भी लेता है। अब पॉइंट इज दैट अगर ये 1950 के बाद 1950 के बाद जैसे मानो यहाँ पर कुछ फॉल्स ट्रिगर भी पॉइंट हुआ है, जो फॉल्स नहीं बोलेंगे, बट जितना आप सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मानो यहाँ पर आप सोच रहे थे कुछ होने वाला है बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा कई बार हम लोग थोड़ा धोखा भी खा जाते हैं। मानो आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, आपका टारगेट 2400 के जाने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में आना चालू हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आना चालू हो गया, मे बी टुवर्ड्स 1800, टुवर्ड्स 1700। अब आप कितना लॉस झेल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि स्टॉक का वोलेटिलिटी को, ये डिपेंड करता है स्टॉक के वोलेटिलिटी को कि भाई स्टॉक कितना वोलेटाइल है। सर इस बार ये जो अदानी का केस था ये थोड़ा एक्सेप्शनल इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का क्लीन चिट दिया था अदानी के अगेंस्ट में, जो बहुत बड़ा क्लेम आया था हिंडनबर्ग की तरफ से, उस क्लेम के ऊपर बेस करके मैक्सिमम चीजों में अदानी को क्या मिल गया था, एकदम क्लीन चिट मिल गया था कि भाई अदानी का कोई ऐसे अकाउंट मैनिपुलेशन नहीं है जैसे कि हिंडनबर्ग ने दावा किया था। तो पॉइंट इज दैट अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पैसा खा लिया होगा सर हो सकता है, पता नहीं, बट मुझे विश्वास था कि अदानी के अगेंस्ट में पॉजिटिव आएगा, पता नहीं क्यों नहीं, बट मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा ऐसा मुझे भरोसा था, बहुत था, ठीक है, ये कन्विक्शन बोल सकते हो आप। मुझे कन्विक्शन था कि इनके अगेंस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करेगा, चाहे रीजन कुछ भी हो। तो वही बात है सर कि जो आपको ट्रिगर दे रहा था, बट फिर भी अगर बाई चांस ऑपोजिट होता तो, अगर बाई चांस ऑपोजिट होता तो आप नेगेटिव खा जाते। अब आप कितना तक लॉस खाने के लिए रेडी हो, आपका टारगेट 2400 है, बहुत अच्छा है, बट आपका अगर लॉस भी हो जाए तो आप कितना तक खा सकते हो लॉस। इसमें आपको वोलेटिलिटी बहुत हेल्प करेगा, इसमें आपको वोलेटिलिटी बहुत हेल्प करेगा। तो वही चीज आपको मैं थोड़ा सा अभी बताऊंगा कि आप किस तरह से वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस ले सकते हो। आप लोगों को कैंडल स्टिक्स बेस्ड स्टॉप लॉस लेना आता है ना। कैंडल स्टिक्स बेस्ड स्टॉप लॉस लेना आता है आपको, जैसे मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, मैंने डबल या ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो डबल या ट्रिपल कैंडल स्टिक्स होते हैं उसमें आप लोग नॉर्मली क्या करते हो कि अगर मानो मल्टीपल कैंडल है तो इन दोनों में जो सबसे लोअर पॉइंट है ना, जैसे मानो अगर आप एक शॉर्ट टर्म अचीव करना चाहते हो तो आपको आपका मानो एक 1950 आपका टारगेट है,
और इधर आप सोच रहे हो कि भाई अगर ये 2100 तक अगर जाएगा तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉप लॉस क्या करोगे, इन दोनों में से जो लोअर पॉइंट है, अगर फर्स्ट पैटर्न वन का लोएस्ट जो है वो अगर आपका लोएस्ट है तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर पैटर्न टू का लोएस्ट अगर आपका स्टॉप लोएस्ट है तो उसको आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन ये तो कैंडल बेस्ड हुआ, कैंडल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर कि अगर आप उसको वोलेटिलिटी बेस्ड करते हो। अब इसमें और एक चीज मुझे आपको बताना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप 2400 एक टारगेट एग्जांपल ले रहा हूँ सर, हाँ कोई ऐसे नहीं कि मैं एकदम आपको बता रहा हूँ कि 2400 टारगेट करना चाहिए। 1950 में कोई अगर इसको बाई करता है इस पर्टिकुलर डेट में और वो सोच रहे हैं कि भाई 2400 जाएगा और वो अपना स्टॉप लॉस ना एकदम प्री डिटरमाइन करते हैं कि भाई अगर 1900 में जाएगा, अगर बाई चांस नेगेटिव में 1900 में आएगा मैं सेल करके निकल जाऊँ। इसमें मिनिमम लॉस तो होगा, बट सर इसका प्रॉब्लम बताओ मुझे, कौन मुझे बता सकते हो कि अगर आप एक प्री डिटरमाइंड स्टॉप लॉस फिक्स करते हो कि मैं 1900 में स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्लीज एनीवन मुझे बता सकते, कौन मुझे बताएगा? चौथा चौथा বলবি कि যদি আমি 1950 আমার কারেন্ট প্রাইস আর যদি 1900 আমার মানে স্টপ লস হয় তাহলে কি প্রবলেম হতে পারে? স্যার মার্কেট একটু নিচে নামলেই সেল হয়ে যাবে। मार्केट अगर थोड़ा सा और मतलब इसमें इसी में वोलेटिलिटी का खेल है ना, इसी में वोलेटिलिटी का खेल है। आपको टारगेट अचीव करना है कि स्टॉप लॉस हिट कराना है। अगर आप प्री डिटरमाइंड स्टॉप लॉस लगा देते हो जो कि इजीली अचीवेबल हो जाता है, मैंने मार्केट में डे टू डे फ्लक्चुएशंस में, मार्केट का जो डेली फ्लक्चुएशन या डेली वोलेटिलिटी में अगर 1950 से 1900 हिट कर जाने का चांसेस बहुत हाई है ना, चांसेस वेरी हाई। अब ऐसे सिचुएशंस में अगर आपका स्टॉप लॉस 1900 है तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। स्टॉप लॉस हिट करेगा माने आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा लॉस में, तो 2400 का टारगेट तो एकदम दूर की बात हो जाएगा। तो फिर आप एक ट्रेड सेटअप करके भी आपका सेटअप पूरा बेकार हो जाएगा, ऊपर से ब्रोकर ही चला जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा। हेलो, जो लोग रेगुलर ट्रेड कर रहे हो उसको क्लियर हो जाएगा, नो डाउट उनको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोग अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं किए उनके लिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ये जो लोग हल्का फुल्का ट्रेड करते हो या फिर रेगुलरली मार्केट में ट्रेड सेटअप लेते हो दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। बट जो बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एकदम बेसिक लेवल में हो, अभी भी सोच रहे हो कि कब से ट्रेड लेंगे, उनके लिए बता रहा हूँ। সম্পদ ব্যাপারটা বুঝতে পারলি कि यदि আমি अगर मैं सब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर लूं और बहुत मिनिमम लॉस खाने के लिए सोच रहा हूं तो फिर तुम टारगेट अचीव करने के बजाय लॉस खा के बैठे रहोगे। বোঝা গেছে ব্যাপারটা? हाँ सर। थैंक यू। बाकी सबको समझ में आया? विश्व सुमित ব্যাপারটা বোঝা গেছে তো? हाँ सर। वेरी इजी थिंग, बट फिर भी मुझे बताना चाहिए। लेकिन सर अभी इसमें आपको ये चीज समझना चाहिए, ये इजी कॉन्सेप्ट ही लोग गलती कर देते हैं उन्हें डे टू डे लाइफ। ओके, इजी चीज ही समझ में नहीं आता है कई बार। वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे काम करेगा ये चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। द डिस्कशन हियर इज अ डिग्रेशन फ्रॉम ऑप्शंस। In fact, this would have been more apt in future trading module, but I think we are at the right person. ये चीज मैं लास्ट दिन भी आपको हल्का सा बताया था। The first thing you need to identify before you initiate any trade is to identify the stop loss, है ना? कि आप एक मिनिमम लॉस के लिए तो रेडी रहो। Price for the trade. As you know, the stop loss is the price point beyond which you will not take any further losses. स्टॉप लॉस क्या है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट है जिसके बाहर आप और लॉस नहीं लेना चाहते, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। हर इंसान का एक सहने का ताकत होता है, सबका अलग अलग सर, सबका अलग अलग। जैसे मानो एक बंदा, मैं फाइनेंशियली भी बोलता हूँ और मेंटेलिटी भी बोलता हूँ, दो चीज होता है। एक होता है फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर। अगर आप 1 करोड़ के मालिक हो, ठीक है, आपके पास 1 करोड़ है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे में 10,000 का लॉस हो जाए आपका फीलिंग्स कैसा रहेगा? और अगर आप 10 लाख का मालिक हो, बात को समझे सर, और अगर आपको 10,000 का लॉस हो जाए तो आपको कैसा फीलिंग्स आए? और अगर आप 1 लाख का मालिक हो और अगर आपको 10,000 का लॉस हो जाए तो आपको कैसा फीलिंग्स आए? प्लीज
एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉमन सेंस। जो 1 करोड़ का मालिक है, उसका 10,000 का लॉस हो जाए तो उसको थोड़ा सा कम ही फील होगा ना सर, कॉम्पेरेटिवली, क्योंकि उसके पास अभी भी अच्छा खासा पैसा है। मैं ये नहीं कहता कि 10,000 का लॉस जो करोड़पति है उनके लिए लॉस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेटेज ऑफ दुख है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो 10 लाख का मालिक है उसके लिए 10,000 का लॉस का वेटेज, उनको मतलब दुख का जो वेटेज है ना वो थोड़ा ज्यादा होगा। और जो 1 लाख का मालिक है उसको 10,000 का लॉस होगा, तो फिर उसको जोर का झटका लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, प्लीज टेल मी। फिर রাখবে তো? খারাপ তো লাগবেই স্যার, কিন্তু পার্সেন্টেজ ওয়াইজ দেখতে গেলে মানে ঠিকঠাকই আছে। ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু না না মানে 1 করোড় যার আছে সে 10,000 টাকা তার কাছে খুব একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট লাগবে। যার 1 লাখ টাকা আছে তার কাছে 10,000 টাকা মানে তার 10% ক্যাপিটাল ওয়াইপ হয়ে যাবে ওখানে। एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। इसी चीज को रिस्क एपेटाइट बोलते हैं, मैंने तुम कितना झेल सकते, ठीक है, इन सिंपल फाइनेंशियल टर्म पे। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो अगर मैं इतना समझता हूँ कि अगर कोई करोड़पति भी है उसका 10,000 लॉस भी लॉस ही है, उतना ही दुख होना चाहिए जितना लाखपति का 10,000 लॉस होने से जितना होना चाहिए। बट फिर भी क्या है ना, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, जैसे जिनके पास 10 लाख है उसके पास से अगर कोई 10 टका छीन ले तो उसको उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता। इट्स अ वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर आप ऐसे इसको बोल सकते हो फाइनेंशियल, जो बोलते हैं ना बिहेवियरल फाइनेंस, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, ठीक है। और मार्केट के अंदर साइकोलॉजी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। ये सुनने में अजीब लगता है बट साइकोलॉजी इज द बिग थिंग इन मार्केट। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करके ना बंदा अगला ट्रेड लेगा कि नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है। माने अगर आप साइकोलॉजिकली डाउन हो जाते हो फिर आपका मन उठ जाएगा, आपको लगेगा कि भाई चलो छोड़ो यार, बंद करो कंप्यूटर, ठीक है। मैंने अगर आपको 2-4 दिन लॉस आ गया ना, आप साइकोलॉजिकली डाउन हो जाओगे। और कुछ लोग होंगे कि जो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मोरल उनका हमेशा अप होता है कि चलो ठीक है इस बार नहीं हुआ अगला दिन होगा। तो साइकोलॉजी इम्पैक्ट देता है मार्केट में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। तो मार्केट सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव रहना है, ये रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे भी डिपेंड करता है, मेंटल बैलेंस पे भी डिपेंड करता है। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा इसको फील किया हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे मैं फील कर सकता हूँ तो और भी 10 लोग फील कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर मैं ऐसे लोग भी देखता हूँ कि जिनको इतना मायने नहीं रखता है, थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो क्या हुआ, चलो आगे देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अरे भाई बहुत लॉस हो गया अब छोड़ो अब बंद करो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं और कभी आना ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं बहुत हुआ मार्केट और कभी मार्केट का नाम मत लो मेरे सामने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। तो जो भी हो, लेकिन स्टॉप लॉस को एकदम केयरफुली अचीव करना एक बहुत बड़ी चीज। लॉस अचीव नहीं करना है बट उसको फिक्स करना है। सो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर आप निफ्टी फ्यूचर बाई करते हो 8,300 पे, एग्जांपल है, पुराना डेटा से लिया गया। और अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो 8,200 एज योर स्टॉप लॉस, ध्यान से सुनिए, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो 8,200 इज योर स्टॉप लॉस, तो आप बेसिकली 100 पॉइंट रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर 100 पॉइंट में गिर जाए तो मैं उसको झेल सकता हूँ। इसीलिए इतना देर से ये झेलने वाला बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्केट को झेलना ये अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने देखा सर, ये मैंने ऑब्जर्व किया, सबका झेलने का ताकत सेम नहीं है और सबका झेलने का इच्छा भी सेम नहीं है। तो 8,300 से अगर मार्केट 8,200 में भी चले जाए तो आप झेल लोगे ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। द मोमेंट निफ्टी फॉल्स बिलो 8,200, जिस मोमेंट में निफ्टी 8,200 को क्रॉस करके और डाउन जाने के लिए सोचेगा, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और आपको 100 रुपीज लॉट में लॉस होके आप निकल जाओ। The question, however, is how to identify the appropriate stop loss level. That is the big question. चाहे वो पर शेयर में हो या लॉट में हो, जो भी हो, सिचुएशंस को समझे सर कि आप कितना लॉस झेलना चाहते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच यूज्ड बाय मेनी ट्रेडर्स इस अप्रोच को यूज करते हैं, टू कीप अ स्टैंडर्ड प्री फिक्स परसेंटेज स्टॉप लॉस। For example, one could have 2% stop loss on every trade. So if you are to buy stock at 500, then you can your stop loss price is 490. That means 500 का 490 बने, आप बेसिकली 10% रिस्क लेना चाहते हैं, जिसका परसेंटेज हो जाता है 500 का 10 बने 2%, 500 का 10 by 500 बने कितना हो जाएगा 2%, है ना।
तो ऑन दिस ट्रेड तो अब 2% लॉस लेना चाहिए। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज ये जो आप सब्जेक्टिवली डिटरमाइन किए ना 2% इज सब्जेक्टिवली डिटरमाइन, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आपने लिया इसको, मार्केट की इच्छा के अनुसार या मार्केट स्ट्रक्चर को देख के नहीं लिया। आपका इच्छा है कि भाई मैं 2% तक झेल सकता हूँ इसलिए मैं इसको ले लूँ। बट इस अप्रोच का एक प्रॉब्लम भी है कि बेसिकली रिजिड हो जाता है। रिजिड माने ढीठ माने मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मार्केट कुछ भी करे, ठीक है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द डेली नॉइज, मतलब मार्केट का जो डेली फ्लक्चुएशंस है, जो डेली नॉइज है, जिसको हम लोग वोलेटिलिटी भी जान समझते हैं। हर मार्केट आप लोग देखते हो सर, मार्केट में जो डेली का जो मार्केट में जो उठा बड़ा होता रहता है ना, ठीक है, प्रत्येक दिन, हाँ, अगर प्रत्येक दिन का मार्केट आप देखते हो, हर मिनट में, जैसे आज भी मार्केट ओपन है, आप देख सकते हो कि आज का मार्केट में भी किस तरह से फ्लक्चुएशन नजर आएगा, है ना। 9:30 बजे क्या था, अभी क्या है, जस्ट लुक एट, मैं 5 मिनट का कैंडल लिया। जैसे आप आज का मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में थोड़ा हाई था, फिर देखो लास्ट 5 मिनट में मार्केट थोड़ा सा धड़ाधड़ गिरा, अब थोड़ा सा स्टे कर रहा है, ठीक है, अभी हैमर बना है, फिर एक पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये मिनट कैंडल जैसे आपको सजेस्ट कर रहे हैं, मिनट कैंडल आपको इस तरह का सजेस्ट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर, ये जो होता है ना सर, ये फ्लक्चुएशन है, ये नॉइज है, बट ये नॉइज कहीं ना कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी भी एस्टैब्लिश करता है। यही नॉइज मार्केट में वोलेटिलिटी भी एस्टैब्लिश करता है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि 500 का 2% आपने सब्जेक्टिवली डिटरमाइन कर लिया, बट आपने इग्नोर क्या कर दिया, मार्केट का वोलेटिलिटी। फॉर एग्जांपल द स्टॉक का नेचर कुछ ऐसा है कि ये 2-3% डेली बेसिस में फ्लक्चुएट करता है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा, आप लोगों को पता है, हर स्टॉक का वोलेटिलिटी कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वोलेटिलिटी कैलकुलेशन टेक्निक सिखा चुका हूं। तो एज ए रिजल्ट यू कुड बी राइट अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रेड बट कुड स्टिल हिट अ स्टॉप लॉस। यानी हो सकता है कि जो स्टॉक 2 से 3% डेली बेसिस में वोलेटाइल होता है, आप सोचो कि किसी स्टॉक का एवरेज पॉइंट एक ऐसा है, जैसे अगर मैं कौन सा स्टॉक चूज करूं, तो एक आईटीसी ले सकते हैं। आईटीसी का जो ग्रोथ पैटर्न है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है सर, मुझे ना बहुत अचानक से हाई फाई हो जाते हैं और ना ही अचानक से गिर जाता है ना, बड़ा स्टेबल स्टॉक लगता है मुझे। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ जब समय रहता है कि आईटीसी अपने स्टॉक में जरूर रखा करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। और ऐसा नहीं आप आईटीसी में ना अचानक से बढ़ गया, अचानक से गिर गया, ऐसा बहुत कम देखोगे। ये देखना एक ऑलवेज ना एक ट्रेंड पैटर्न में ही ना इसका आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, कभी भी आपको आईटीसी में ना अचानक ग्रोथ, अचानक गिरा, ऐसा नहीं दिखेगा, हमेशा एक सिचुएशंस बना के ही पड़ता है। ये कप एंड हैंडल दिख रहा है किसी को, ये पढ़ाऊंगा सर, दिखाई दिया, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, टेक्निकल पैटर्न है, बात करूंगा इसके ऊपर। ये लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको हेल्प करता है मार्केट को ट्रेडिंग करने में। कप एंड हैंडल बोलते हैं, एक फ्लैग पैटर्न भी होते हैं, वो भी बताऊंगा सर। आप लोग सुने हो कप हैंडल के बारे में? হ্যাঁ স্যার। এটা হয়েছে তো, কাপ এন্ড হ্যান্ডেল হয়েছে না এটা? আমাকে তো এক্স্যাক্টলি লাগছে, मतलब একটা কাপ আর কাপের হ্যান্ডেল। जो भी हो, देखने को मिला तो इसलिए बताया। आगे क्यों होता है कप हैंडल और उसका क्या बेनिफिट होता है बताऊंगा सर। लेकिन आपको मैं जस्ट एक आईटीसी के शेयर में जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आईटीसी एक ऑलवेज एक पैटर्न लेके आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। कभी भी आपको बहुत अचानक बढ़ना, अचानक गिरना ऐसे नहीं दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में आप एक अपना ऑब्जेक्टिव बना रहे हो कि भाई ये स्टॉक में एक आपको रेगुलर एवरेज ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप इसका वोलेटिलिटी कैलकुलेट करो। इसका वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके आप देखो कि एक स्टॉक डे टू डे बेसिस में या एनुअल बेसिस में कैसे वोलेटिलिटी अचीव करता है, जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है ना। तो इस वोलेटिलिटी के बेसिस में आप परसेंटेज देख लिया ना। अब जैसे आपने परसेंटेज देख लिया, अब आपके सामने क्या है कि अगर आप देखते हो कि कोई स्टॉक 2-3% इसका नॉर्मल है, 2-3% अगर नॉर्मल है, तो अगर आपका 500 अगर शेयर का दाम है और वो 490 में आएगा, इसका चांसेस क्या हो जाएगा? इसका चांसेस हाई होगा कि लो होगा, प्लीज टेल। अगर किसी का वोलेटिलिटी हाई 2-3 हाई, तो हाई होगा तो क्या आप कभी भी 2% स्टॉप लॉस लगाओगे सर? यानी कभी भी आप 490 स्टॉप लॉस लगाओगे उसे? ना सिंपल ही बात है, नहीं लगाओगे, क्योंकि उसका
डेली फ्लक्चुएशंस का या एवरेज फ्लक्चुएशंस का एक कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका ट्रेड बेकार हो जाएगा, आपका मेहनत, आपका टाइम, आप जो कंप्यूटर के सामने जो आंख फोड़ के बैठे हो, ठीक है, माँ बाबा को बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है, सब बेकार लगेगा बाद में। तो इसीलिए आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। तो एज ए रिजल्ट यू कुड बी राइट अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द ट्रेड बट यू कुड स्टिल हिट स्टॉप लॉस। आपका टारगेट सही था, आपका डायरेक्शनल मूवमेंट आपने सही पकड़ा था, बट फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया बिकॉज आपने गलत स्टॉप लॉस चूज किया। तो स्टॉप लॉस चूज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एंड कैलकुलेटिव रिस्क है। So more often than not, you would regret keeping such tight stop loss. इसलिए टाइट स्टॉप लॉस लगाने में मना किया जाता है। बहुत लोगों को लगता है सर मैं ज्यादा लॉस नहीं खाना चाहता। अरे भाई लॉस, अगर तुमको लॉस खाने में इतना डर लगता है, मैं हिस्सा मानता हूँ सर, अगर किसी को भी लॉस खाने में बहुत डर लगता है तो उनको जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप घर बैठे रहना चाहिए। लॉस के डर में अगर आप कुछ ना करोगे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। अगर कुछ करके जिंदगी में कुछ हो भी देते हो चलेगा सर, लेकिन कुछ ना करने का इरादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा साहस तो होना चाहिए, ठीक है। ये नॉट जस्ट इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट बट इन एवरी सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ। आप अपने जिंदगी में, अपने करियर में, अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो भी आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, व्हाटएवर, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्री रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, आपको हर फील्ड में थोड़ा बहुत साहस तो दिखाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा साहस जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने मेरा मानना है कि थोड़ा मॉडरेट चलो, मतलब एकदम तोड़ फोड़ देंगे ऐसा नहीं करना है, और एकदम रिस्क भी नहीं लेना ऐसा भी नहीं करना है, बट एटलीस्ट एक मॉडरेट लेवल रिस्क लेना जिंदगी में अच्छा होता है। तो उतना तो लेने का सोचो सर। और एक बात, an alternate and effective method to identify a stop loss price is by estimating the stock's volatility. Volatility accounts for the daily expected fluctuation in the stock price. डेली एक्सपेक्टेड कि ये स्टॉक डेली लेवल में कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, जो आपको ऑलरेडी कैलकुलेशंस आता है और आपको समझ में भी आया है। अब थोड़ा सा मेहनत करके प्रैक्टिस बढ़ाना। The advantage with this approach is that the daily noise of the stock is factored in. Volatility stop is strategic as it allows us to place a stop at the price point which is outside the normal expected volatility of the stock. Therefore, a volatility stop loss gives us the record logical exit in case the trade goes against us. एक लॉजिकल एग्जिट देगा। हाँ, हो सकता है कि आपका सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन से थोड़ा ज्यादा लॉस हो जाएगा अगर बाई चांस आपके हिसाब से मार्केट ना चला, मैं मानता हूँ। हो सकता है कि आपने जैसे सोचा था 2%, उससे ज्यादा लॉस हो गया, शायद 3-4% लॉस हो गया, लेकिन फिर भी आपको वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस लेना चाहिए बिकॉज उसमें आपका सक्सेस का चांसेस ज्यादा है। जैसे यहाँ पर एक कैंडल का एक चार्ट पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली भारतीय एयरटेल का स्क्रीनशॉट लिया गया था। उस टाइम पे एयरटेल का प्राइस कम ही चल रहा था, लेकिन आप प्राइस को मत देखो। अभी करेंटली आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है 21 दिन का, 10 दिन का, ठीक है। क्रॉस एवरेज लाइन जैसे कैलकुलेट होती है, जो टेक्निकल आप लोगों को सिखाया जाता है। अब वो सब आप छोड़ो, आपको करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। करंट प्राइस 395 है ना? हेलो, हाँ सर, करेंटली मार्केट 395 लेवल में है। 385 सपोर्ट बन के बैठा है ना सर? देखो, ये सब टेक्निकल क्लास में और डिटेल्स में सीखोगे आप, और ऑलरेडी आप लोगों को सीखने को भी मिल रहा है। अब थोड़ा और इंडिकेटर्स यूज करना धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी भी इंडिकेटर लेवल में मैंने आया नहीं टेक्निकल। तो 395 आप हाँ सही बोला, 395 करंट प्राइस है, 385 आपका सपोर्ट बना हुआ है, और 417 आपका रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है। ये सर नो, प्लीज टेल मी, आप मुझे इतना बताओ। दिस इज योर रिसेंट रेजिस्टेंस, दिस इज योर सपोर्ट एंड दिस इज योर करंट प्राइस। तो आप मुझे बताओ ऐसे सिचुएशंस में आप अच्छा, और एक चीज साथ में आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस करंट मार्केट प्राइस तो आपने देख लिया। आप कैंडल तो देखो, ये कौन सा कैंडल बना हुआ है, प्लीज टेल मी। हरामी। थैंक यू सर। बुलिश हरामी। बुलिश हरामी।
सर बुलिश हरामी के साथ अगर सपोर्ट मैच कर जाए क्या करोगे? चुपचाप बैठे रहोगे कि कुछ करोगे? ट्रेड नेब लॉन्ग করব एकदम। पुलिस हरामी के साथ अगर आपको सपोर्ट मिल जाए सोचना ही नहीं है, चुपचाप ट्रेड करना है, ज्यादा नहीं सोचना है। पुलिस हरामी के साथ सपोर्ट लेवल मैच कर गया मैंने, चांसेस मतलब 90% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल ट्रेड करो। ठीक है, टारगेट क्या करोगे? नियर रेजिस्टेंस पे टारगेट बनाओ, नियर रेजिस्टेंस को टारगेट बनाओ। जैसे यहाँ पर 21 डेज एवरेज काउंट करके आपने टारगेट देखा तो 417 आपका टारगेट बन सकता है ना। ट्रेड सेटअप करोगे 395 में बाई करोगे, 417 आपका टारगेट रहेगा, 385 आपका सपोर्ट बना हुआ है। ये एयरटेल का ये जो स्ट्रक्चर है ओल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा पुराना है बट कॉन्सेप्ट तो आज भी देखने को मिलता है किसी भी स्टॉक। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक्स जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें होते हैं, साथ में मूविंग एवरेज भी आपने देख ली। और मूविंग एवरेज का दोनों जो एवरेज लाइन है वो दोनों एवरेज लाइन भी आपका करंट प्राइस से ज्यादा है, तो ट्रेंड भी बना हुआ है बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो हर चीज से आपको चेक पॉइंट जितना सारा होता है हर चेक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि भाई बाई करो। ये जो चार्ट है आप इस चार्ट से कुछ एग्जांपल रेडी करते हैं और डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए ये समझाने का कोशिश करें। मैंने ये एक आइडिया है वोलेटिलिटी पे स्टॉप लॉस बनाने का, आप देखो आपको समझ में कितना आता है। तो ये एयरटेल में आपको बुलिश हरामी आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को पैटर्न के साथ फैमिलियरिटी हो गया है, आप सब फैमिलियर हो चुके हो। रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग ऑन द स्टॉक कीपिंग द लो ऑफ द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का जो लो है उसको आप दिमाग में रखो, जो आपका सपोर्ट कोइंसाइड कर रहा है। आपका प्रीवियस डे का जो लो है वो सपोर्ट को कोइंसाइड कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो हमारा जो बुलिश हरामी पैटर्न बना है, इसका जो पैटर्न 1 है दैट इज डाउन ट्रेंड में जो पैटर्न 1 है, ठीक है, बुलिश हरामी का। पैटर्न 2 जो है जो बेसिकली यहाँ पर व्हाइट दिखा रहा है जो ग्रीन भी हो सकता था। पैटर्न 1 का जो लो है ये कहीं ना कहीं पैटर्न 1 का आप लोएस्ट ऑफ द डे देखोगे तो 375 के आसपास जा रहा है, और जहां पर ये क्लोज हुआ है ये आपका 385 है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सपोर्ट और प्रीवियस डे का क्लोजिंग मैच कर गया। हेलो, सपोर्ट लाइन एंड प्रीवियस डे का क्लोजिंग मैच कर गया, कोइंसाइड कर गया, किया कि नहीं किया? सपोर्ट लाइन एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग कोइंसाइड किया, ये सर नो? सर ठीक है, तो इसी चीज को बताना चाहता है। इस तरह का चीजें अगर आपको मिले ना सर, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एकदम टॉप लेवल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने ऐसे बॉल में लोग छक्का लगाते हैं, 6 मारने वाला बॉल है ये, ऐसे बॉल छोड़ना नहीं चाहिए। अब आपको ध्यान से समझना। तो लो ऑफ द प्रीवियस डे जब कोइंसाइड करते हैं सपोर्ट के साथ, या क्लोजिंग ऑफ द डे अगर कोइंसाइड करते हैं सपोर्ट के साथ एज द स्टॉप लॉस, द टारगेट वुड बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। टारगेट क्या होगा? इमीडिएट रेजिस्टेंस। बोथ सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स आर मार्क्ड विद द ब्लू लाइन, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। एंड द ट्रेड टू मटेरियलाइज ओवर द नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस। तो हम लोग इसको अगला 5 दिन के लिए सोच रहे हैं, ट्रेड जो लेंगे हम लोग तो 5 दिन का ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, आप ध्यान से सुनना चाहिए। अब लॉन्ग जाना चाहते हो तो आपका लॉन्ग में बाइंग बन रहा है 395, स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो 385 में, जो आपका कोइंसाइड किया क्लोजिंग कैंडल के साथ प्रीवियस डे का जो 385 है। टारगेट आपने रेजिस्टेंस को रखा 417। रिस्क आपका कितना है? अब अगर आप इसको लेते हो, ये आपका सिचुएशन है, लॉन्ग 395, स्टॉप लॉस 385, टारगेट 47। रिस्क कितना ले रहे हो सर? 395 माइनस 385, 395, स्टॉप लॉस 385, मतलब आपका लॉस अमाउंट है बाई नंबर 10, जो कि परसेंटेज वाइज एंट्री प्राइस से 2.5% होगा। मतलब 395 का 10 करके, मतलब 10 बाई 395 करके देखो तो कितना आता है? 2.5 आ रहा है क्या? अरे तो मुझे करके बताए जरा। না দাদা 2.5 তো আসবে না। কত আসবে তাহলে? কত আসছে? হ্যাঁ ওরকম আসতে পারে, কারণ পরে দেখ।
ভাই আসছে তো 2.5 ही तो আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ হুম 2.5 ही तो आ रहा है सर। হুম तो इसका मतलब क्या है कि आप जो रिस्क ले रहे हो दैट इज 2.5% बिलो एंट्री प्राइस, माने एंट्री प्राइस 395 है और आपका स्टॉप लॉस है 2.5% नीचे करंट प्राइस से, मतलब आपका एंट्री प्राइस है नीचे। दिस इज योर एंट्री लेवल, दिस इज योर स्टॉप लॉस लेवल। तो स्टॉप लॉस लेवल आपका 2.5% बिलो में। रिवार्ड कितना है आपका? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टेक्निकल पे भी बताया जाता है, यहाँ पर भी आ गया तो मैं बता दें। रिवार्ड कितना हो जाएगा? 417 माइनस 385, 417 माइनस 385 मतलब 385 आपका स्टॉप लॉस एरिया है, तो 32 पॉइंट आपका मैक्सिमम मिल सकता है। तो अबाउट 8.1% अबव एंट्री प्राइस, 8.1% अबव एंट्री प्राइस जो 32 होता है, ठीक है। 395 से 17, तो यहाँ पर 395 से 17 माने कितना हो गया? ये लोग 85 से काउंट कर लिया ना स्टॉप लॉस। तो रिवार्ड यहाँ पर ये लोग बताना चाहता है कि अगर 385 से अगर आप करते हो, आप दोनों करके देख सकते हो, 385 से आप 417 तक जाके देखो, इसमें आपका वैल्यू हो जाएगा 32, है ना। और अगर आप 395 से करके देखो तो आपका वैल्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट 23, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ 23। तो अगर आप 23 करके भी देख लो, 32 करके भी देख लो, मतलब स्टॉप लॉस पॉइंट से भी आप चेक करके देख लो, और अगर आप एंट्री पॉइंट से भी देखना चाहते हो उसके हिसाब से भी देख लो। एंट्री पॉइंट से भी देख सकते हो, स्टॉप लॉस पॉइंट से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर रिवार्ड को कैलकुलेट करने के लिए आप देखो कि भाई आप कितना रिवार्ड आपको मिल रहा है। 417 माइनस 385 32, जो कि एंट्री प्राइस 8.1% ज्यादा। आप इसको चेंज करके 395 से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, थोड़ा सा कम होगा ऑब्वियसली। तो रिवार्ड टू रिस्क रेशियो यहाँ पर अगर हम लोग स्टॉप लॉस पे ले रहे हैं तो 32/10 माने 3.2। 3.2 का क्या मतलब है? 3.2 का मतलब है कि अगर आप 1 पॉइंट रिस्क लेते हो तो आपको 3.22 रिवार्ड मिलता है। अगर आप 1 पॉइंट रिस्क लेते हो तो आपको 3.2 रिवार्ड मिलता है। जैसे आपको एक चीज बताऊं मैं, ये जो हमारा जैसे रिसेंटली आप लोगों ने आरबीआई का एक प्रॉब्लम रिसेंटली जो हुआ है, क्लेम हुआ है, अब इसको प्रूव करना है। आरबीआई ने रिसेंटली आप लोग बताया कि 88,000 करोड़ का कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, मैं उसके ऊपर बात और नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू प्रूफ का मैटर है, अगर आगे क्या सामने आता है देखो। लेकिन आरबीआई का एक दूसरा एक पॉजिटिव चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, और आरबीआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी भी है, यू ऑल नो दैट। और हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। आरबीआई जब 1 टका छापता है ना, मार्केट में फ्लो करता है, तो आरबीआई का भी ना एक टारगेट होता है कि अगर हम मार्केट में 1 रुपी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बदले मार्केट 3 रुपीज अर्न कर एटलीस्ट। मतलब किसी भी कंट्री को ना, जो भी पैसा वो मार्केट में छापता है, उसको हमेशा यही अचीवमेंट करना चाहिए कि अगर आप 1 टका मार्केट में डाल रहे हो तो कम से कम उससे आप 3 टका कमा के देखो। आप समझ रहे हो बात मेरा? हाँ सर, ऐसा आरबीआई भी सोचता है, ऐसा नहीं कि आरबीआई नहीं सोचता, भले ही वो सोशली कंट्री को चलाते हैं। जैसे इंडिया ने रिसेंटली ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जैसे मूडीज ने, आप लोग मूडीज के बारे में जानते हो? हाँ जानी दादा मूडी जो है सर, ये बहुत फेमस रेटिंग कंपनी है। ये दुनिया भर में इनका रेटिंग मैं बहुत मानता हूँ सर, क्योंकि मैंने जब जब ऑब्जर्व किया, जैसे एस&पी भी बहुत फेमस रेटिंग कंपनीज है, मैक्यूरी भी है ऑस्ट्रेलिया का, बट मूडीज बहुत ही पुराना भी है और बहुत एक्यूरेट रेटिंग होता है इसका। मतलब कंपेरेटिवली मेरा ऑब्जर्वेशन अभी भी मूडीज जितना करते हैं, काफी बेहतरीन करते हैं। तो हाँ बोलो, কোম্পানি बहुत बोली, ক্রিসিল আর কে बुझते वाला नायवा बहुत। ক্রিসিল আর কে আর हाँ कृषि केयर, ठीक है, वो सब भी है रेटिंग पे, बट ये और भी बड़े कंपनी है, ठीक है, वर्ल्ड। ये बेसिकली इकोनॉमिक लेवल में, कंट्री लेवल में ये करते हैं, रेटिंग करते हैं बहुत ज्यादा। तो इंडिया expect global rating agency Moody's to upgrade the sovereign ratings of the Asian nations that is stuck in the lowest possible investment grade
A finance minister official said. Finance minister official today made senior executive Moody's as they were looking to push for an upgrade in rating backed by robust growth outlook, moderating inflationary pressures, and a stronger macroeconomic growth. India's key official discussed borrowing, disinvestment target, and state budget with Moody's today. The finance minister official did not wish to be named. Okay, review. So basically, ये खबर मार्केट में भी रिसेंटली मैं देख रहा था कि मूडीज इंडियन गवर्नमेंट के बारे में एक कुछ अच्छा चीज भी देखा, ठीक है। खराब तो ये लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, खराब ये लोग बोलते रहता है, लेकिन एक अच्छा चीज देखा कि इंडियन गवर्नमेंट लोन रीपे बहुत अच्छा कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट से कंट्री को बहुत लोन लेना पड़ता है, उसमें इंडिया का जो रीपेमेंट एक्टिविटी है ये बहुत अच्छा है, और इसका मेन रीजन है कि इंडिया का बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि देश में बिजनेस अच्छा हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो इनकम होगा तो मैंने वही बात है सर, 1 टका डालने से 3 टका आए। ये कंट्री का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि हम अगर 1 रुपी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3 टका कमा पाए। तो यहाँ पर भी बात कुछ वैसा है कि अगर आप 1 टका का रिस्क लेते हो तो कम से कम आप वहां से 3 टका रिटर्न कमा पाओ, एक्सपेक्टेड रिवार्ड। तो ये इकोनॉमी लेवल में एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिटर्न हो, बिजनेस रिटर्न हो, या फिर कंट्री का एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। जिस जो कंट्री ऐसे पॉजिटिव वे में अपने आप को फील करा सकता है ना, जो भी कंट्री, आप सोच लेना कि उस कंट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट, सीरियसली फ्यूचर रियली ब्राइट। जैसे मैं आपको एक चीज, मैं कल एक चीज एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि मैं एक चीज परचेज किया था, तो परचेज किया इसीलिए, एक शूज परचेज किया, तो मैंने थोड़ा सा देख रहा था, मुझे ब्रांड के बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करता। आप लोग इसके बारे में नाम सुने हो सर? डिकाथलन नाम सुने सर? बहुत बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स का शॉपिंग मॉल भी है, स्पोर्ट्स मॉल भी है इसका, और इंडिया में नहीं सर, दुनिया भर में है। स्पेशली ट्रेकिंग वगैरह, मतलब अलग अलग टाइप का ट्रेक वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग नाम सुना है किसी ने? हेलो, এদের স্যার হ্যাঁ রেভিনিউ স্যার, আমাদের যেমন ইন্ডিয়াতে বেশি, ওই নাইকি অ্যাডিডাস ওদের সবাই কম্বাইন করলেও যা হয় তার থেকে বেশি। অনেক বেশি, অনেক বেশি। এবারে কত 2900 crore সামথিং মনে হচ্ছে দেখেছিলাম। आई थिंक फ्रांस का कंपनी है ना, कहाँ का है ब्रांड? डिकाथलन। एक फ्रेंच कंपनी है। मैं बताता हूँ मैं आपको क्यों इसके बारे में बताया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कहाँ है? फ्रांस, सही है, याद है मुझे, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा आजकल, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग रिसर्च कर लेना। लेकिन मैं एक छोटा सा चीज रिसर्च कर रहा था कि सर ये इनका बिजनेस का सोच आप लोग अगर सोचोगे ना, आप पागल हो जाओगे। जैसे ये जो दुनिया भर में इनका बिजनेस चलता है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट का, क्या नहीं बेचता सर, हर चीज स्पोर्ट्स का मिलेगा आपको इनके पास। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बहुत ही किफायती दाम पे देता है। मैंने आपको ताजुब लगेगा कि आप यहाँ पर 150 टका का टी शर्ट भी मिलता है, 150 का, आपको मार्केट में कोई नॉर्मल दुकान में नहीं मिलेगा। कोई भी नॉर्मल दुकान में आपको 150-200 का टी शर्ट नहीं मिलेगा। आप अपने घर के बगल में किसी दुकान में जाओ, नहीं मिलेगा। 299 में आपको स्पोर्ट्स जैकेट वगैरह मिल जाएगा, वो भी ब्रांडेड, ठीक है। सर मैं एक चीज चेक कर रहा था, नॉर्मली शॉपिंग मॉल में हर चीज महंगा होता है नॉर्मली, लेकिन ये लोग रीजनेबल प्राइस में देता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सस्ते में देता है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत एक्सपेंसिव है कि हम लोग टच ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये लोग काफी रीजनेबल पैसे में देते हैं। तो मैं यही देख रहा था कि इनका दुनिया भर में बहुत सारा स्टोर है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इनका स्टोर का संख्या कितना है आज के डेट में। रेवेन्यू देखो आप, 11.4 बिलियन इनका रेवेन्यू है, और इनका मेन एरिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो मैं जस्ट एक चीज थोड़ा सोच रहा था, मैं आप लोगों के साथ वही चीज बोल रहा हूँ कि इस बंदे का फोकस देखो आप, जिन्होंने इस बिजनेस को बनाया, जिनका ये बिजनेस जिन्होंने बनाया, ये जो माइकल क्या क्या स्पेलिंग होगा, लेक्रेक्यूई जो भी है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा अजब है सर, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। लेकिन इनका, मैं एक चीज, जैसे ये लोग फुटबॉल कहाँ से बनाते हैं जानते हो? ये लोग फुटबॉल बनाते हैं पाकिस्तान से, और आपको एक चीज बता दूं, दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉल पाकिस्तान में मिलता है। ওয়ার্ল্ড কাপে ফুটবল সেটা পাকিস্তান থেকে আসে। थैंक यू विश्व, वर्ल्ड कप का फुटबॉल भी पाकिस्तान से ही आता है। तो फुटबॉल रिलेटेड, या फिर फुटबॉल हो या वॉलीबॉल टाइप का, जो भी जरूरी
जो बॉल टाइप का चीज होते हैं, वो चीज ये लोग पाकिस्तान से बनाते हैं और रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान से परचेस करते हैं। इंडिया से ये लोग कपड़ा रिलेटेड माने क्लोथिंग के लिए जितना टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल मटेरियल सारा का सारा इंडिया से ये लोग जुगाड़ करते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए इंडिया बेस्ट मार्केट है और सस्ता भी है, इवन मैन्युफैक्चर भी यहीं पर होता है। तो इस तरह से ये लोग दुनिया के साइकिल का प्रोडक्ट, साइकिल रिलेटेड प्रोडक्ट जर्मनी और इताली से ये करता है, साइकिल इनका बहुत बिकता है। तो मैं इनका बिजनेस मॉडल सोच रहा था, एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ है, ये एक दिन में नहीं बढ़ रहा है। 56 कंट्रीज में 2080 स्टोर्स है इनका, इट्स अ ह्यूज बिजनेस। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हम लोग स्पोर्ट्स नहीं करते थे, कितना सारा स्पोर्ट्स है, बट आप मुझे बताओ इंडिया के अंदर कितना कंपनी ऐसा अभी तक बना है एज सच पॉपुलर नहीं। অ্যাডিডাসের তো আছে কিন্তু দামটা অনেক হাই। অ্যাডিডাস, পুমা, নাইক वही मैं बोल এরা रहा हूँ कि তিনজনের টপ 3 তে আছে। वही मैं बोल रहा हूँ, बट इनके जैसा नहीं है सर, इनके जैसा नहीं है जो पीयूष स्टार्टिंग में बता रहा था। স্যার এদের বিজনেস মডেলটা হচ্ছে মানে এদের যারা সেলসম্যান আছে না, তারা হ্যাঁ, আপনাকে প্রোডাক্টটা সেল করার জন্য বিক্রি মানে তারা বলবে না, তারা আপনাকে প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে মানে এমন বোঝাবে আপনি সেটা নিজে থেকে নিতে চাইবেন। মানে ওদের एग्जैक्टली বিজনেস মডেলটা ওরকমই আছে। सीरियसली আর आई एम তাছাড়া ওরা তো নিজেরাই ম্যানুফ্যাকচার করে। वेरी इंस्पायर्ड। मैं इसका बिजनेस मॉडल से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं सीरियसली मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स तो सर दुनिया भर में चलेगा, स्पोर्ट्स दुनिया भर में चलेगा और स्पोर्ट्स रिलेटेड मैटर में कभी कमती नहीं आएगी। और इनका सोच जो है ना सर, ये इनका जो मतलब जो फिलान्थ्रोपिक जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं आजकल थोड़ा फैन हो गया इसका कि भाई किस तरह से इतना सुंदर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट डेवलप किया। हो सकता है बड़ा बिजनेस बनाया, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी हो सकता है, बट पॉइंट इज दैट कि स्पोर्ट्स प्रोडक्ट रिजनेबल रेट में सभी के लिए दुनिया भर में बेचना कोई आम बात नहीं। ऐसा अच्छा हम लोग भी तो कर सकते थे। मैं एडिडास पीमा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोकल लेवल में हम लोगों के अंदर ऐसा नॉलेज क्यों नहीं बिल्ड होता है। एडिडास पीमा छोड़ो, मैं कहता हूँ कि नॉर्मल लेवल में लोगों के अंदर क्यों स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेलेगा लोग, स्पाइक खरीदेगा लोग, बैट बॉल खरीदेगा, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। ऐसा ब्रांड क्यों नहीं डेवलप कर सकते, मतलब ऐसा सोच क्यों नहीं आता है लोगों के अंदर, बिकॉज हम लोगों का एजुकेशन लेवल अभी बहुत डब्बा है। इवन हम लोग एक स्मॉल स्टोर भी नहीं बना सकते जिसमें हमका खुद का मैन्युफैक्चरिंग और मेरा खुद का एक डिकाथलन भी एक समय में इससे छोटा हुआ करता था, बाद में बड़ा हुआ है ইন্ডিয়া 1976। মাইন্ডেড না, हाँ, ইন্ডিয়ার মানে অতটা বিজনেস মাইন্ডেড না তো। বিজনেস মানে মাইন্ডেড নয় নর্মালি বলতে নলেজ, এখনো নলেজ ডেভেলপ হয়নি, কোনো নলেজটা হ্যাঁ ডেভেলপ হয়নি, এটাই প্রবলেম। মানে মাইন্ডেড জব তো করতে চায় সবাই। এটাই प्रॉब्लम सर, सबको जॉब चाहिए लेकिन रियल अपॉर्चुनिटी घर के सामने है, हमारे पास सब कुछ দাদা है আগ- सर। দাদা, আগের দিন একটা জিনিস দেখলাম, মানে এটা জানতাম না, মানে অ্যাডিডাস আর পুমা এরা মানে দুটো ব্রাদার। भाई भाई भी। হ্যাঁ, দুই ভাই মানে ওদের দুজনের ব্যবসা এটা। अच्छा अच्छा, আমি আগের দিন দেখছিলাম এটা, नो, একটা ফিল্মও বেরিয়েছে 2016-তে এটার উপরে। सही नहीं देखता रहता हूँ। जरूरी है डेकाथलन का দাদা बिजनेस। টাইম পেলে দেখতে বিশাল ইন্সপায়ার, মানে বিশাল, মানে বইটা খুব ভালো, একবার দেখবো টাইম পেলে। अच्छा देखो, खुली जगह निश्चय देखो, जो भी हो। तो जस्ट मैं वही चीज बोलने का कोशिश, और मेरा कुछ इरादा नहीं था कि ये 1 रुपी डालने से 3 टका कैसे बन सकता है। आप सही चीज में इन्वेस्ट करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट से ही आता है ना सर। चलो ठीक है, आ जाओ। तो दिस साउंड्स लाइक अ गुड ट्रेड फ्रॉम ए रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। 1 टका डालने से 3 टका इज ह्यूज थिंग, ह्यूज। In fact, I personally consider any short-term trade that was reward risk ratio. Even आप अगर किसी से 1 टका डालने से अगर 1.5 भी मिल जाए ना ट्रेडिंग में तो भी अच्छा है। However, everything hinges upon the fact that the stop loss is 385 is sensible. ये सबसे बड़ा सवाल। तो कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं। Let us make some calculations and dig a little deeper to figure out it if they make sense. Step 1, estimate the daily volatility of Airtel. ठीक है, आप volatility बनाओ एयरटेल का डेली। से फॉर एग्जांपल आप अगर कैलकुलेशन कर लेते हो, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीवियसली आप सीख चुके हो। मानो कि आपने देखा कि एयरटेल का डेली वोलेटिलिटी है 1.8% ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज एयरटेल डेली अपने एवरेज पॉइंट से 1.8 अप करता है, 1.8 डाउन करता है। कन्वर्ट द डेली वोलेटिलिटी इनटू द वोलेटिलिटी ऑफ द टाइम पीरियड। अगर आप 5 दिन का वोलेटिलिटी चाहते हो तो क्या करोगे,
क्योंकि हम लोगों का ट्रेड 5 दिन का है। 1.8 को 5 से स्क्वायर रूट कर दोगे ना, हेलो, ये चीज तो पता है आप लोगों को। 1.8 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 कर दो, तो आपको 5 दिन का 5 डेज का वोलेटिलिटी पता चलेगा 4.01। स्टेप 3 क्या करना है, कैलकुलेट द स्टॉप लॉस प्राइस बाय सबट्रैक्टिंग 4.01 जो 5 डे का वोलेटिलिटी है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड एंट्री प्राइस। तो आपका एक्सपेक्टेड एंट्री प्राइस क्या है, 395। 395 का 4% कितना होता है, 379। द कैलकुलेशन अबव इंडिकेट्स दैट एयरटेल कैन स्विंग फ्रॉम 395 टू 379। इसका मतलब ये है कि एयरटेल 395 से 379 पे स्विंग हो सकता है और वेरी इजीली आ सकता है 5 दिन में। ये 5 दिन का बात कर रहा हूँ। 5 डेज में 395 से 379 इजीली एयरटेल आ सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स वोलेटिलिटी। दिस आल्सो मींस, इसका मतलब और भी ये होता है कि स्टॉप लॉस ऑफ 385 कैन इजीली नॉक डाउन। माने अगर आपका स्टॉप लॉस 385 होगा तो क्या हो जाएगा सर, नॉक डाउन हो जाएगा ना, ये सर नो। अगर आपका स्टॉप लॉस 385 हो जाता है, हाँ ये सर, इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना इजीली, तो 375 हाँ करो सर, इवन, है ना, इवन आपको 379 के नीचे करना चाहिए क्योंकि 379 भी अचीवेबल है डिपेंडिंग ऑन दी 5 दिन का वोलेटिलिटी। 375 which is 20 points below the entry point price of 390, ये सही रहेगा कॉम्परेटिवली। 375 स्टॉप लॉस सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरह से सोचना है, जो इजीली अचीव हो जाएगा तो फिर आपका बेकार हो जाएगा पूरा ट्रेड। तो आप इस तरह से सोचोगे तो आप थोड़ा एक्यूरेसी ले पाओ। हाँ, आप उसके बाद अगर आप बोलोगे नहीं 375 नहीं 377 लगाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, 376 लगाएंगे वो भी आप सोच सकते हो। बट ओवरऑल आप देखो कि भाई अगर अचीव हो जाएगा ना, बाई चांस अगर वो हिट कर जाएगा तो पूरा आपका ट्रेड ही बेकार हो जाएगा। तो विद द न्यू स्टॉप लॉस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वर्क्स आउट टू बी 1.6, माने आपका 32/20 हो जाएगा, 32/10 की जगह 32/20 हो जाएगा। लेकिन स्टिल अभी भी सेंस रखता है, माने 1 टका में 1 टका 6 पैसा, कोई स्टिल मीन्स ओके, ठीक है ना। ये भी कम क्या है, 1 टका डाल के 1.5 टका कोई कमती होता है सर, 60 पैसा ट्रेड लेना चाहिए। इनकेस अवर एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड इज 10 डेज, अगर ये 5 दिन के जगह 10 दिन होता तो आपका 1.6 आपका क्या है सर, आपका 1.6 आपका रेशियो बना है ना आर। अब इसको 10 दिन का स्क्वायर रूट करो, इसी तरह से आप आगे का हर कैलकुलेशन कर सकते हो। ये सर नो, जैसे हम लोग इससे पहले 1.8 करे किए थे, उसके हिसाब से देखे थे, 5 दिन के हिसाब से देखे थे, आप 10 दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि कितना अचीव हो सकता है। नंबर ऑफ डेज मैटर करता है ना, 5 दिन अगर 10 दिन में बदल जाएगा तो हिसाब चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है तो आप इस तरह से लगाओ, ना कि प्री फिक्स परसेंटेज स्टॉप लॉस डज नॉट फैक्टर इन डेली फ्लक्चुएशंस। दिस इज अ वेरी गुड चांस दैट ट्रेडर प्लेस अ प्री मैच्योर स्टॉप लॉस। जैसे प्री मैच्योर बेबी हो जाते हैं ना कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम के कारण, वैसा हो जाएगा within the noise level of stock. This invariably leads to triggering the stop loss first and then the target. आपका स्टॉप लॉस पहले अचीव होगा, टारगेट बाद में, और टारगेट मिलेगा ही नहीं, टारगेट तो जाएगा बट आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया सर, वोलेटिलिटी एप्लीकेशन क्लियर हुआ? और वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस বোঝা গেছে ব্যাপারটা? দাদা আমি একটা ক্যালকুলেশন ওখানে বুঝতে পারছিলাম না, কোনটা বলেন? মানে 1.8 এর স্কোয়ার রুট দিয়ে ওটা 4.01 এসছে, ওটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। 1.8 এর স্কয়ার রুট দিয়ে, এটা তো আমরা এতেই শিখেছিলাম যখন আমরা ভোলাটিলিটি ক্যালকুলেশন শিখেছিলাম। আমি 1.8 স্কোয়ার রুটটা পাই কিন্তু এটা আসছে কি করে একটু দেখে দাও। জাস্ট এইভাবে করে লিখতে যাবে সাকসেসি 1.8 বেসিক্যালি প্রথমে রুট ওভার 5 বানা, রুট 5 কেটে গেল 5 স্কয়ার ইনটু 1.8 কত হলো 4.024। এটাই এটাই এখানে এসছে 4.0। ওই রুট ওভার 5 দিয়ে, তাই তো? হ্যাঁ, রুট ওভার 5 করবি। আমি শুধু রুট ভাবছিলাম, ওই জন্য ঠিক আছে। না না, শুধু রুট না, রুট ওভার 5 দিয়ে রুট নিবি, ঠিক আছে, এটার সাথে ইন্টু করে দিবি যেটা তোর ভলিটিলিটি থাকবে।
তাহলে এটা তো 5 দিনের ভলাটিলিটি বেরিয়ে গেল। যদি এটা 10 দিনের ভলাটিলিটি বের করতে চাস তাহলে 1 পয়েন্ট কত ছিল, সরি এক সেকেন্ড, 1.8 এর মানে 10 হ্যাঁ, ডেজের 10 ডেজের স্কয়ার করবি ইনটু 1.8, বুঝে গেছি। তাহলে এটা 5.6 হবে, তা 10 দিনের ভলাটিলিটি হয়ে যাবে। এইভাবে অ্যানুয়াল ভলাটিলিটিও বেরিয়ে যায় ना। जेटा एनएससी साइड है, एनएससी के साइड में ये डेटा भी अवेलेबल होता है, हम लोगों में दिखाया था कि कैसे उसको निकालना है। ओके, so this is how you can use the volatility for calculating stop loss and for the successful trading opportunity. टारगेट अचीव करना मेन टारगेट है सर, और स्टॉप लॉस से गलत स्टॉप लॉस लगा के अपना मेहनत को बेकार नहीं करना है। अनदर थिंग, नेक्स्ट क्लास हम लोग सर एक्चुअली अब हो गया सर, वोलाटिलिटी में बहुत बात हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर वेगा में चर्चा स्टार्ट करेंगे, दैट इज टुमारो। ओके, अपकमिंग क्लास में मैं आपको वेगा बताऊंगा। ऑलमोस्ट होने को ही है सर, ग्रीक कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को ही है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, बस बैठे बैठे काम ही कुछ और नहीं सर, हम लोग को बैठे बैठे वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटेजी बनाना है। सब आप लोगों को एकदम मजा आएगा। ठीक है, चलो सर आज इतना ही है, बाकी कल मिलते हैं। আচ্ছা 22 থেকে 27 কিন্তু ক্লাস অফ থাকবে বলে রাখুন, আমি কোশ্চেন্স গুলো দিয়ে যাবো, ওগুলো প্র্যাকটিস করবে। জুলাইয়ের উইন্ডে সবাই পরীক্ষায় বসতে পারিস, সিপিএল ডেরিভেটিভ। হ্যাঁ বল। तो मैं क्लास आपको